So today we are going to continue the chapter Carbon and its Compound. Again and again, several times I used to say this word that this chapter is very important for you. Okay, ये कार्बन जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है और आपने 10 से पहले कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम भी नहीं सुना है, राइट? तो इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से पढ़ोगे बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आप क्लास 11-12 में भी जाके ऑर्गेनिक आपका एकदम अच्छा रहे. दिस इज जस्ट द इनिशिएशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो जितने भी पॉइंट्स हैं, जो भी चीजें हैं, वो हमें जाननी ही जाननी चाहिए. So till now we had discussed about the covalent bonding in carbon, the saturated unsaturated compound, the homologous series, and some idea about the functional group. Now let's start another topic of this chapter, which is nomenclature. Now what is this nomenclature? Nomenclature is giving name to any compound. So giving name to any compound is called as nomenclature. Clear? So this why this is important? Okay, why the naming is important? The reason behind it is हमें नाम की जरूरत क्यों है? हमारा क्यों नाम होता है? या एक बच्चा पैदा होता है तो उसके पेरेंट उसका नाम रखते हैं. क्यों नाम रखते हैं? बिना नाम के भी चल सकता है काम. नाम इसलिए रखते हैं ताकि उसका एक आइडेंटिफिकेशन मिले, ठीक है, उसकी एक पहचान हो, लोग उसे उस नाम से जाने. ओके, सो दैट इज द थिंग. इफ वी वांट टू कॉल समथिंग, ऑर्गेनिक के भी बहुत सारे कार्बन के बहुत कंपाउंड्स है, अगर हमको उनको बुलाना है, अगर हमको उनको कॉल करनी है, हमको उस कंपाउंड के बारे में बात करनी है, तो हमको एक नाम की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, दैट्स वाई फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनीथिंग, एनी कंपाउंड, वी नीड दिस nomenclature, that is giving name to any compound. Now अब जैसे मान लो एक नाम है, if अपना ही नाम लिख देते हैं हम, डॉक्टर अपर्णा राय. ओके, सो देयर इज अ रूल टू राइट अ नेम. पहले हम डेजिग्नेशन लिखते हैं, उसके बाद फर्स्ट नेम, देन सरनेम, जिसको हम फैमिली नेम भी बोलते हैं. क्लियर? सो ऐसा कभी आपने देखा है अपर्णा राय डॉक्टर कहीं लिखा हुआ? बोलने के लिए तो कुछ भी बोल देते हैं, राय अपर्णा. इट्स नॉट लाइक दैट. ओके, दिस इज अ रूल कि पहले आप डेजिग्नेशन लिखो, देन यू हैव टू राइट फर्स्ट नेम, देन यू आर सपोज टू राइट द सरनेम. सो फॉर नेमिंग द कार्बन कंपाउंड्स देयर आर सेवरल रूल्स, ओके, which we have to follow to write the name of any compound. Now let's have a look on the rules, and these rules are given by IUPAC. Already I discussed about this organization. IUPAC means International Union of Pure and Applied Chemistry. So this organization gave several rules to write the name of any compound. So let's have a look. First thing is, we need 4 things to write name of a compound. We need 4 things to write name of a compound. What are these 4 things? First is functional group. Functional group. Second is substituent. Third is double or triple bond, and fourth is carbon chain, which decides the word root. Clear? So we need these 4 things to write the name of any compound. First is functional group, which I had already discussed in the previous lecture. So students who have not seen that video, please go and see what is functional group. It is a group which replaces hydrogen or other atom and just attached with a carbon compound and changes its property is called as functional group. Like alcohol, aldehyde, ketone, carboxylic acid, ester, amines, there are so many. Then we are having substituents. What is this substituents?
Substituents is anything which displaces hydrogen. Okay, हाइड्रोजन जैसे मान लो मैंने एक कार्बन कंपाउंड यहां पे लिखा, आपको पता है कार्बन कंपाउंड में हर जगह क्या होता है, एच लगा हुआ होता है, राइट। ये देखो सारा जगह हमने एच फिट कर दिया। अब कहीं एक जगह से एच को हटा के अगर कोई और ग्रुप लग गया, दैट इज सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, अब ये सब्स्टिट्यूएंट क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहले तो क्लोरो, ब्रोमो, आइडो और इसके अलावा अल्काइल ग्रुप। ओके, अल्काइल मीन्स CH3, C2H5 like this. So this is called as methyl, ethyl and so on. Okay, so this is the substituent. देखेंगे उसको एक एक करके देखेंगे, अभी थोड़ा रफली आइडिया ले लेते हैं। देन थर्ड थिंग इज कि कंपाउंड में हमें देखना है कि कहीं भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड है या नहीं है। ओके, ऑलरेडी लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि अगर सिंगल बॉन्ड हर जगह है तो एन लगाते हैं नेम के एंड में, डबल बॉन्ड है तो इन लगाते हैं एंड ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगाते हैं। तो यहां भी हम लोग को देखना है कि कंपाउंड के एंड में ये तीनों चीजें हैं कि नहीं है या क्या है, जो भी होगा उसको हम यूज करेंगे। लास्ट वन इज वर्ड रूट। वी हैव टू सी द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अगर एक चेन दिया हुआ है कार्बन का, हो सकता है उसमें ब्रांचिंग भी हो, एक लंबा जो चेन दिया हुआ है तो उसमें हम नंबरिंग करते हैं और नंबरिंग से हम लोग पता करते हैं कि ये जो है लास्ट तक कहां तक वो चेन जा रहा है, एंड इसके बेसिस पे वी डिसाइड द वर्ड रूट। So this is the four things which we need to write the name of any organic compounds: functional group, substituent, double or triple bond, and the word root. This is the thing. Is it clear? Okay. Now let's move towards these things one by one. Okay. We'll see it. So let's start with the substituent. Functional group I had already discussed. Okay. So start with the second. Substituent. So what can be the substituent? It can be Cl, it can be Br, it can be I, and it can be alkyl. Okay. For this we write chloro. नाम लिखेंगे तो अगर ये कहीं लगा रहा है तो इसके बदले लिखेंगे क्लोरो। For this we used to write bromo. For this ido. And alkyl can be many. CH3, C2H5. आपने alkane सीरीज पढ़ा है ना, आप उस alkane सीरीज में से एक एक हाइड्रोजन कम करते जाओ, बस वही होगा। CH4 फर्स्ट मेंबर है तो हमने एक हाइड्रोजन कम कर दिया, दिस इज CH3। C2H6 सेकेंड मेंबर है, C2 3 into 2 6 plus 8, C2H6, right? हाँ, C2H6. So we decrease one hydrogen, it becomes C2H5. Then C3H7. Okay, C4H9, like this. So these are the alkyl group. One hydrogen less than the alkane family, that is the alkyl group. Okay. Now if carbon number 1 is there, we used to write meth, and since it is alkyl, so we write methyl. If it is there, we used to write ethyl. If it is there, we used to write propyl, butyl, and so on. So substituent can be this four, any. If Cl is present, we used to write chloro. If Br is present, we used to write bromo, ido, alkyl, methyl, ethyl, whatever it is. Clear? Now the third thing is double or triple bond. Already you know, if double bond is present, then that compound contains E in its name. उसके नेम के एंड में हम क्या लगाएंगे? E. If triple bond is there, then ine. And if single bond is present, then we used to write ane. So already in the previous lecture where we discussed the functional group and the saturated and unsaturated compounds, we have already discussed these things. That if a compound is alkane, ane is added at the end of the name.
If a compound is alkyne, ine is added, and if a compound is alkene, we used to write ene at the end of that compound. Okay? Now, the third thing is word root. Word root हम लोग लिखते हैं, होपफुली समझ के होगे, नोट्स भी कॉपी करते जाओगे, एग्जाम के टाइम में नोट्स ही काम आता है. So let's see the fourth thing, that is the word root, longest carbon chain. Okay, you have to see the carbon chain. कार्बन कितना लंबा है उसके बेसिस पे वही हमारा पेरेंट चेन होता है. ठीक है, इसके अलावा बाकी सब ब्रांचिंग. तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर कार्बन एक रहा तो उसके लिए वर्ड रूट क्या लिखते हैं हम लोग, मिथ. 2 हुआ तो एथ, 3 प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 hept. Now I'm writing here 8 oct, 9 none, 10 dec. So this is the word root. So if it is a alkane, we used to write methane, ethane, propane, butane, pentane, hexane, heptane, octane, nonane, decane. Okay? If it is a alkene, alkene start from C2 because we need C double bond C. So at least we need two carbon for that. Okay. So it starts with C2. If it is a alkene, then ethene. Name के end में क्या लगा रहा है, ene. Propene, butene, hexene, pentene, heptene, octene, like that. And if it is an alkyne, again it starts with C2 because carbon 1. With one carbon, we cannot make the double or triple bond. So C3, we used to write ethyne, propyne, butane, pentine, hexyne, heptine, like that. Got it? Okay. So this is the word root. Now यहीं पे मैं आपको एक और चीज बता दूं जो आपके एनसीईआरटी में एक सिंपल सा टॉपिक दिया हुआ है, चेन, ब्रांच्ड और रिंग. नो व्हाट इज दिस चेन, ब्रांच्ड और रिंग? हम बात कर रहे हैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करने की. तो चेन जो है, अगर मान लो कि कोई कंपाउंड इस तरीके से लिखा हुआ चेन फॉर्म में, इसको हम लोग बोलेंगे चेन. क्लियर? अब इसमें कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन आर प्रेजेंट देयर. इसी 5 कार्बन को मैं ऐसे लिखती हूं इस तरीके से. कार्बन तो यहां भी 5 ही हैं, लेकिन ये चेन था, यहां मैंने क्या किया, एक ब्रांचिंग ऐड कर दिया. सो दिस इज ब्रांच्ड. क्लियर? एंड रिंग, इसी 5 कार्बन को मैं ऐसे बना दूं. ओके, थोड़ा और इसको अच्छे से बनाती हूं. दिस इज रिंग, ए क्लोज स्ट्रक्चर. दिस इज रिंग. वही 5 कार्बन को हमने स्ट्रेट फॉर्म में लिखा, हमने ब्रांचिंग कर लिया, एंड इसी को हम रिंग में भी बना सकते हैं. ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिंग. सो चेन हो गया, ब्रांच्ड हो गया, और रिंग. एक कार्बन कंपाउंड को हम अलग अलग तरीके से दिखा सकते हैं. ठीक है, एंड इसके बेसिस पे इसकी नेमिंग भी चेंज होती है. अगर रिंग फॉर्म है तो उसके आगे हम ऐड कर देते हैं एक और प्रीफिक्स, साइक्लो. ठीक है, पेंटेन तो सब है, लेकिन ये रिंग है तो इसके लिए क्या यूज कर लेंगे हम लोग, साइक्लो. खैर, आप लोग को रिंग क्लास 10 में हमको रिंग का नॉमेनक्लेचर नहीं पढ़ना है. So when we go to class 11, we used to listen this. ठीक है, ये आपको समझना होगा कि रिंग है तो साइक्लो लगाते हैं, बट 10 के लेवल में ये सिर्फ चेन और ब्रांच तक ही नेमिंग आती है. क्लियर? अब हमको सेलेक्ट करना है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. ओके, सो इसका तो स्ट्रेट चेन में तो पता चल रहा है किस तरीके से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो जाएगा. इसमें क्या करेंगे हम, 1 2 3 4 लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. इधर से भी काउंट करेंगे, 1 2 3 4 1 2 3 या 1 2 3 4. कहीं से भी काउंट करें तो 4 ही आ रहा है, तो हम किसी को भी ले सकते हैं. लेकिन अगर ऐसा हुआ कि कोई दूसरे तरीके से, अगर हम इधर से काउंट करें या इधर से काउंट करें, कहीं से भी काउंट करने से 4 से ज्यादा आ रहा है तो उसको सेलेक्ट करेंगे, वो हमारा पेरेंट चेन हो जाएगा. और जो बाकी बचा खुचा है वो ब्रांच चेन. यहाँ पे क्या हो गया, दिस इज आवर पेरेंट चेन एंड दिस इज ब्रांच्ड.
क्लियर? तो पेरेंट चेंज से ही हम वर्ड रूट लिखते हैं. दीज थिंग वी यूज टू राइट. मिथ है कि इत है कि क्या है, वो चीज हम लिखते हैं. क्लियर? अगेन C10 के बाद आपको नहीं पढ़ना. इवन इन क्लास 11 ऑल्सो ब्रांचिंग आएगी, लेकिन C10 से ज्यादा एक्सीड नहीं करेगा, तो वर्ड रूट आपको उसके बाद जानने की जरूरत नहीं. क्लियर? नाउ दीज आर द 4 थिंग्स विच वी नीड टू राइट द नेम. नाउ लेट्स स्टार्ट द सीक्वेंस ऑफ राइटिंग द नेम. पहले क्या, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या. ये तो 4 चीजें थी जो जरूरत पड़ी. अब ये 4 चीजों को अरेंज कैसे करना है, दैट वी हैव टू सी. सो लेट्स हैव अ लुक. Sequence of writing the name. First of all, we used to write prefix, then word root, then primary suffix, and then secondary suffix. Now students, this is the easiest method to understand the nomenclature. बुक में बहुत ज्यादा हौच-पौच करके दिया हुआ है, या कई लोग आपको बहुत तरीके से समझाएंगे, बट ये सबसे आसान तरीका. आप सीक्वेंस जानोगे तो आप आराम से कर पाओगे. सीक्वेंस हमने देख लिया. प्रीफिक्स क्या होगा भाई? प्रीफिक्स हो गए सब्स्टिट्यूएंट्स. हमने ऑलरेडी अभी डिस्कस किया कि सब्स्टिट्यूएंट्स क्या है. इट कैन बी क्लोरो, ब्रोमो, आइडो और अल्काइल. ओके, सो इफ substituent is present, that should be written first. Then we used to write word root. You know, myth, ith, prop, etc. Clear? Means word root means what? Longest carbon chain. And that longest carbon chain is referred as parent chain. Right? Now moving towards the next one, that is the primary suffix. What can be used as primary suffix? Okay, this is the double or triple word, even single also. Means what we have to write at the end of the name, either in or in or I. Clear? In, I. This is the primary suffix. And the last one is secondary suffix. Secondary suffix is the functional group. So what we used to write at the end, either all, al, on, oic acid or anything. So this is the sequence of writing the name. As I told you, Dr. Aparna Rai Singh. If I used to write like this, Doctor is the prefix, which is substituent. Aparna is the word root. Rai is the primary suffix and Singh is the secondary suffix. So this is the sequence of writing the name. Okay. अब it's not necessary that everything should be present. जरूरी तो नहीं है. अभी मेरे नाम में डॉक्टर तो है नहीं, तो ये हटा सकते हैं हम लोग. तो जरूरी नहीं कि ये सीक्वेंस जबरदस्ती फॉलो करोगे. देखोगे कि कंपाउंड में प्रीफिक्स है कि नहीं. सब्स्टिट्यूएंट होगा ऐसा जरूरी तो है नहीं. अगर नहीं होगा तो प्रीफिक्स नहीं लिखेंगे. यहां से डॉक्टर हट गया. वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स ये दोनों होना कंपलसरी है. यानी कि मेन नेम एंड द सरनेम ये तो होगा ही होगा. क्लियर? ये तो होगा. सेकेंडरी सफिक्स और प्रीफिक्स माइट बी देयर, माइट नॉट बी देयर. फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी प्रेजेंट हो सकता है. होगा तो लिखेंगे, नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे. लाइक अगेन मेरे नाम में सिंह नहीं है. कभी आपने सुना होगा राम कुमार सिंह, राम कुमार ओझा, राइट? कुमार एंड ओझा. तो कुमार इज द प्राइमरी सफिक्स, ओझा इज द सेकेंडरी सफिक्स. तो ओझा हो या ना हो, कुमार तो सब में होगा, या कुमार के बदले कुछ ना कुछ सरनेम सब में होगा. सो वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स फिक्स है. सेकेंडरी सफिक्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. होगा तो यूज करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे. सेम विद द प्रीफिक्स ऑल्सो. Clear? So this is the sequence of writing the name. So you got the sequence, you got the things which you need to write the name. Now I am giving you some examples to write the name. Okay.
इसको नहीं इरेज करते हैं ताकि अभी आप सीक्वेंस देख पाओगे. गॉट इट. सो डोंट इरेज. आई एम नॉट गोइंग टू इरेज दिस. नीचे इरेज कर देते हैं ये सब. लेट्स स्टार्ट विद द सिंपल वन. ये ऑलरेडी बताया हुआ है. जहां पे कुछ नहीं दिया हुआ है सब जगह हाइड्रोजन फिल कर दो. कर दी. अब पहला काम क्या है हमारा? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना. ये रूल है. पहला लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना. तो भाई हम किए 1 2 3. इधर से भी करेंगे 1 2 3. वही आ रहा है. वही हो गया लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. अब देखना है कि प्रीफिक्स है कि नहीं है. कहीं से है प्रीफिक्स? नहीं लिखेंगे. देन वर्ड रूट. 3 के लिए वर्ड रूट क्या लिखते हैं हम लोग? प्रोप. तो हमने प्रोप लिख दिया. ठीक. अब उसके बाद हम देखेंगे कहीं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है कि नहीं है. सब जगह सिंगल बॉन्ड. तो वी यूज टू राइट प्राइमरी सफिक्स एन. अब फंक्शनल ग्रुप. सेकेंडरी सफिक्स क्या है? फंक्शनल ग्रुप. फंक्शनल ग्रुप भी कहीं प्रेजेंट नहीं है. सो ये हमारा नाम क्या हो गया इसका? प्रोपेन. क्लियर. अब हम क्या करते हैं? ये 3 कार्बन को ही लिया हमने. एंड अब हम एक हाइड्रोजन को हटा के उसके जगह हमने लगा दिया OH. ठीक है. फिर से वही काम. लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना. तो यहां से 1 2 3. अब रिमेंबर वन मोर थिंग. एक और रूल है. दूसरा रूल क्या है कि हमेशा नंबरिंग तो वहां से यहां से भी शुरू कर सकते थे 1 2 3. हमेशा नंबरिंग वहीं से शुरू करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप सबसे नजदीक है, या डबल और ट्रिपल बॉन्ड सबसे नजदीक है, या सब्स्टिट्यूएंट सबसे नजदीक है. हाइड्रोजन छोड़ के कुछ भी है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, सब्स्टिट्यूएंट है या फंक्शनल ग्रुप है, वो सबसे नजदीक कहां से काउंटिंग करने से आ रहा है वही हमारा सीक्वेंस. वहीं से हम काउंटिंग शुरू करेंगे. क्लियर. अब तुम बोलोगे कि मिस अगर डबल बॉन्ड भी है, फंक्शनल ग्रुप भी है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? ठीक है. तो उस केस में सबसे पहला जो प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी वी हैव टू चेक. प्रायोरिटी वी हैव टू गिव टू द फंक्शनल ग्रुप. ठीक है. फंक्शनल ग्रुप को सबसे मिनिमम पोजीशन मिलना चाहिए, तब डबल ट्रिपल बॉन्ड को देखेंगे. ठीक है. नाउ फंक्शनल ग्रुप में भी प्रायोरिटी लिस्ट होता है. किसको पहले? एक कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप भी रह सकते हैं. तो उस केस में क्या करेंगे? वो केस आपको नहीं पढ़ना है. ठीक है. अगेन आप क्लास 11 में जाओगे तो वो प्रायोरिटी लिस्ट भी देखोगे कि किसको पहले और किसको बाद में. क्लियर. सो हमने नंबरिंग इधर से की. सब्स्टिट्यूएंट है नहीं तो प्रीफिक्स हमारा लगा नहीं. हमने सीधा लिखा प्रो और सब सिंगल बॉन्ड. तो एन. अब यहाँ पे एक चीज याद रखो. एन इन आइन तीनों के लास्ट में क्या है? ई. ठीक है. अब ये जो ई है हमारा, ई को हम रिमूव करते हैं. क्यों भाई? क्योंकि इसके बाद हमको सेकेंडरी सफिक्स लगाना है. तो हम लगाएंगे ओल, OL. ठीक है. एंड ये कहां पे है ये पोजीशन भी आपको मेंशन करना है. ये पहले वाले कार्बन से अटैच है. तो पहला आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, लेकिन बाकी आपको लिखना है. तो ऐसा ही हैबिट डेवलप करोगे. सब लिखे. प्रोपेन, ई हटा के हाइफन लगाना 1, फिर हाइफन लगाना ऑल. दिस इज प्रोपेनॉल. ठीक है. यही OH अगर यहां लग जाता तो यहां पे क्या लिखते? प्रोपेन 2 ऑल. क्लियर. ना सब इसी में हम अगर सब्स्टिट्यूएंट भी लगा दें. ठीक है. सब्स्टिट्यूएंट भी हमने लगा दिया. और मैंने क्या बोला कि देखो कि फंक्शनल ग्रुप कहाँ आ रहा है. फंक्शनल ग्रुप इधर से भी 2 में आएगा, इधर से भी 2 में आएगा, लेकिन इधर से करेंगे तो क्लोरो भी नजदीक आ जाएगा. तो हम इसकी नंबरिंग चेंज कर देंगे. इधर 1, इधर 2, इधर 3. क्लियर. तो प्रोपेन 2 ऑल तो समझ में आ ही रहा है. ये क्या है? ये तो सफिक्स है, प्रीफिक्स है. इसको पहले लिखना है. तो व्हाट वी यूज टू राइट 1 क्लोरो. अगेन सब्स्टिट्यूएंट का भी पोजीशन आपको मेंशन करना. 1 क्लोरो प्रोपेन 2 ऑल. दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड. सो दिस इज द वे टू राइट द नेम ऑफ एनी कंपाउंड. मैंने आपको सब चीज बताया. पहला रूल आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुनना है. दूसरा रूल आपको देखना है कि कहां से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको चाहिए. या तो फंक्शनल ग्रुप कहीं अटैच है तो वहां से काउंट करेंगे, या फिर वहां से मतलब उसका पोजीशन नजदीक आना चाहिए, बीच से कहीं से नहीं शुरू कर देंगे. या डबल ट्रिपल बॉन्ड है या फिर सब्स्टिट्यूएंट है. तो थर्ड रूल की प्रायोरिटी चेक करेंगे हम. अगर फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, सब सब्स्टिट्यूएंट सब कुछ है तो वी सी फ्रॉम वेयर फंक्शनल ग्रुप इज कमिंग एट द लीस्ट पोजीशन. ठीक है. फोर्थ रूल इज
in between number and the alphabet we should use the hyphen use करेंगे. ठीक है. Fifth rule, we should have mentioned the position of the substituent and the functional group. Clear? So hopefully आप लोग को nomenclature समझ में आया होगा. Now nomenclature is all about the practice. So जितना ज्यादा practice करोगे नेम का उतना ज्यादा समझ में आएगा. Now this is my advice that in class 10 don't go for, जैसे मुझसे बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं 12 का पूछने लगेंगे. बेटा आपको अभी उतना नहीं जानना है. ठीक है. तो फोकस ऑन योर बोर्ड एग्जामिनेशन और क्लास 10 लेवल. ओके कर पा रहे हो तो वेरी गुड, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं करोगे. आप सीधे नॉर्मली स्ट्रेट चेन का और ब्रांचिंग का ही प्रैक्टिस करोगे. एंड नॉट मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप इज देयर इन योर कोर्स. ओके, सो डू इट and practice more and more nomenclature, and if you are having any doubts, students, you can ask in the comment box. So in the next class we are going to discuss the chemical properties of carbon and its compound. So till then, thank you.